The awards are being presented as today is World Tourism Day and India is hosting the day for the first time. This year the theme is Tourism and Jobs, a better future for all. This aims at creating awareness about various economic benefits of tourism and its growth as in the job sector. Here is a presentation. The United Nations World Tourism Organization celebrates 27 September as the World Tourism Day since 1980. Each year, the day sees a new theme and a new country as a host. This year, for the first time, India is hosting World Tourism Day with the theme Tourism and Jobs, a better future for all. As the theme goes, the main objective of the program is to open more avenues for job seekers in the field of tourism. The aim is to create awareness about various benefits of tourism that may otherwise remain inaccessible. India is one of the most popular tourist destinations in terms of its enthralling landscapes to rich flora and fauna. It has a vast variety of landscapes to travel over and diverse cultures to scout and learn about. Its every corner has so much to offer and has always attracted tourists from across the globe. From Vensang to Vasco da Gama, all have travelled to India and documented its practices and happenings for historical references. With a surging number of foreign tourists, today India is a global platform for investment and economic growth. According to the Tourism Ministry, the number of foreign travellers is also on the rise as 10.5 million foreign tourists visited India in 2018. India was chosen as the host country as it has wide geographical entity than the rest of Asia. India can offer a tourist different tourism choices, diverse cuisines, arts, faiths, music forms, adventure places, history and even language. Be it the land of dawn Arunachal Pradesh or awesome Assam, beautiful Bengal or blissful Bihar, and the enchanting Tamil Nadu or God's own country, Kerala, India welcomes guests with open arms to live its lively beauty. Festivals like Kumbh Mela, Rath Yatra, Thrissur Puram portray our rich culture and diverse heritage. Today, tourism is generating 10% of the world jobs, and tourism has emerged as a leading business industry in many countries. The objective is to acquaint people with social, cultural, political and economic importance. As we say, the world is nothing but a book and travelling is the best way to read that book. The desire to explore new places and cultures has helped the world to come together and connect effectively. Sangamitra Sahu's report, DD News. इनक्रेडिबल इंडिया, एक ऐसा खूबसूरत देश जहां हर साल 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहे थे, जो हर साल 3.5% की रेट पर ग्रो हो रहा था. इनफैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री contributes to about 9% of India's GDP. But this amazing trajectory comes to a sudden halt due to the pandemic, जिससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ, it also left 12% of India's population unemployed या बेरोजगार, और उन्हीं पैसों से उनका घर चलता था. But there is hope and that hope is you. बहुत ही सिंपल तरीके हैं in which you can make a difference और आप हेल्प कर सकते हैं इंडिया को उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव करने. तो सबसे पहले देखो अपना देश. हर साल इंडिया से 5 करोड़ लोग बाहर घूमने जाते हैं टू फॉरेन कंट्रीज. नाउ हाउ अबाउट वी एक्सप्लोर आवर ओन कंट्री? डिड यू नो दैट इंडिया का हर स्टेट अपने आप में ही एक देश है? स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत पहाड़ है हमारे गुलमर्ग में. मेघालय को कहते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट. अंडमान की राधानगर बीच को माना जाता है एशियाज बेस्ट बीच, और एम्स्टर्डम के ट्यूलिप गार्डन से बड़ा है उत्तराखंड का ट्यूलिप गार्डन. तो दुनिया देखने से पहले देखो अपना देश. इंडिया जाना जाता है अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, और ऐसे कई सारे फोर्ट्स और पैलेसेस हैं जो अब कन्वर्ट हो चुके हैं इन होटल्स, विच आर यूजुअली रन बाय लोकल्स और नेटिव्स. इंडिया में कई सारे खूबसूरत होम स्टेज भी है जहां आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं वहां का लोकल फूड, कल्चर एंड लैंग्वेज. एंड एडेड प्लस, इन कई होम स्टेज में फैमिलीज या होस्ट नहीं रहते, तो आपको एक नई जगह में मिल सकता है एक पूरा घर और किचन अपने लिए, मेंटेनिंग 100% सोशल डिस्टेंस. वेल, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर कई बार हमारे ट्रिप्स ऑलरेडी प्लान होते हैं किसी होटल में,
पर जब भी मुझे मौका मिले उस जगह को करीब से जानने का, मैं जरूर एक लोकल घर में विजिट करती हूँ। जैसे कि राजस्थान की बिशनगढ़ नाम की जगह में मुझे मौका मिला वहाँ के लोकलाइट्स के घर में जाने का, उनके साथ खाना खाने का और उनकी कहानियाँ सुनने का। दिस इज क्वाइट अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड यू गेट टू नो सो मच अबाउट द प्लेस। साथ ही साथ उनकी मदद भी हो जाती है। गॉच ऑन लोकल फूड। इंडियन खाना इंडियन कल्चर जैसे बहुत ही रिच है और ये सिर्फ चिकन करी, पनीर मक्खन वाला या बिरयानी तक सीमित नहीं है। इंडिया के हर कोने ने जन्म दिया है नई रीजनल फूड डिशेस को, अब चाहे वो कश्मीर का वाजवान हो या राजस्थान का दाल बाटी चोरमा। सो ब्रिंग आउट द देसी फूडी इन यू और जाइए लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना खाने उन्हीं की तरह। शॉप एट लोकल मार्केट्स। इंडिया घूमते वक्त शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं, पर अगली बार हाई एंड ब्रांड्स खरीदने से पहले वहाँ के लोकल मार्केट्स में जरूर जाइएगा। सोवेनियर्स, ज्वेलरी, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया हैव एवरीथिंग टू ऑफर। दिल्ली का दिल्ली हाट हो या शिलोंग का भरा बाजार या जयपुर का बापू बाजार, इंडिया की हर सिटी या विलेज में आपको मिलेंगी वहाँ की कुछ खास चीजें। इससे वहाँ की लोकल आर्टिस्ट और आर्टिसंस को ना सिर्फ इनकम बट ऑल्सो एनकरेजमेंट मिलेगी। एंड इन फैक्ट ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब मैं वाराणसी गई थी। You know, I visited some of the local factories जहाँ बनारसी साड़ीज बनती है और इतनी बारीकी से तैयार की जाती है और इतनी मेहनत लगती है। आई एम श्योर जो हम प्राइस इसके लिए देते हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। यूज द लोकल ट्रांसपोर्ट। कोलकाता की पीली टैक्सी हो या लखनऊ की साइकिल रिक्शा, वाराणसी की बोट राइड, केरला का हाउस बोट या कश्मीर की शिकारा, जितना हो सके यूज द लोकल ट्रांसपोर्ट। ये ना सिर्फ एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस है पर इट्स ऑल्सो वेरी यूनिक। आपकी एक ट्रिप उनकी एक दिन का राशन चला सकती है। ट्रैवल करते हुए आपको कई जगहों पे ऐसा मौका मिलेगा जहां आपको मनी नहीं टाइम स्पेंड करना होगा। एक नई जगह पर जाकर आप बहुत कुछ सीखते तो है ही, पर आप कुछ सिखा भी सकते हैं। उन्हें अपने शहर के बारे में बताएं, कोई नई भाषा सिखाएं, वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं या कोई भी स्किल सिखाएं। फ्यू थिंग्स आर प्राइसलेस और इस सीख से वो आज नहीं तो कल जरूर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेंगे। और अब एक रिक्वेस्ट उन लोकल बिजनेसेस से, अतिथि देव भव, which means guest is God। जब भी आपके शहर में कोई टूरिस्ट आए तो उसका एक्सपीरियंस इतना मेमोरेबल बनाए कि वो वापस अपने शहर में जाकर आपकी सर्विस और आपकी जगह सबको रेकमेंड करे। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, चाहे आप 2 पैसे एक्स्ट्रा ले लें। इसी से हम बन सकते हैं वोकल फॉर लोकल एंड कैन सी आवर इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव द वे इट डिड।